very happy that I'll be speaking to my next guest. In fact, they're guests, both brothers. And I want to understand the background of your names. There is Ram and there's Lakshman. They had contemplated Ravan and Kumbhakarna, but there is a story behind. Growing up as twins, was it good, bad, fun? I'm assuming fantastic stories. But It became a while before we realized कि यार हम different हैं. then, of course, Delhi to you moved bases to Mumbai. In मुंबई एक ऐसा शहर है जब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी आप वहाँ नहीं टिक पाओगे। कभी खाना मिल गया, कभी नहीं मिला. कहीं रात को सोना. हम कितनी बार तो एक मंदिर में सोते थे. when you were there, the channel was, I think, experiencing its peak. Actually, when we were there, MTV was very different. यार ये ना क्वेश्चन मेरे पास कई बार आ चुका है। Are you trying to be relevant करके कुछ लोग ट्रोल भी करने की कोशिश कर। Only women, children, and dogs are loved unconditionally. Men are loved with the condition that they provide. आपको साउथ की पिक्चर में टिपिकल टाइपकास्ट विलन ही बनने बोला है? अभी राइट नाउ कोई भी बैठ के तुम अपना स्टेज अपने जेब में लेके चलते हो, तो अपना माइक्रोफोन अपने जेब में लेके चलते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुम यू कैन क्रिएट, घर बैठे बैठे अपने करियर बना सकते हो आप. यार मैं ना I never consider myself comedian but somehow I am in a way. The vibe is set and I'm welcoming you all to another episode of Guwahati Connection. I'm here at the biggest college festival in the Northeast India, at IIT Guwahati here at Alcharinga, where I am very happy that I'll be speaking to my next guest. In fact, they're guests, both brothers. वीडियो टाइटल को देख के शायद आपको पता चला होगा किससे बात कर रहा हूँ. Both of the brothers rose to fame with their reality TV show called Roadies, and today they are here in Guwahati for the Content Creators Camp as a part of Alcharinga IIT Guwahati. And I can't wait to get started on this conversation. I'm damn sure it's going to be amazing, epic, and superb. I'll see you at the end of the episode, and if you've not already done so, be sure to subscribe to the G Plus YouTube channel. And thank you so much for giving us support and all the love that you continue to do. Cheers, guys. You can vote names, code numbers. Please. Thank you so much. ब्लैक कॉफी की बड़ी जरूरत है सर स्पून के नीचे। आप पी लो आराम से. हम ये माइक थोड़ा साइड कर दो ना. I think I'm already on edge. Coffee will make me edgier again. Oh, you're feeding in questions. Siddharth Bedi Verma. Cool. We are all ready. All phones on silent. All watches on silent. Welcome to the show, Raghu Ram, Rajiv Lakshman, and very grateful for your time. How's it been? How's it going so far in Guwahati? Oh, lovely. We've been hunting for eating places since morning. We got up, we had our coffee, got ready, then went, found one place, had momos and coffee, then found another place. It was a big hunt, but we found it. We ate lunch and had coffee, and then we just got back and we're having coffee. You can tell me the names of the place you visited. Maza aayega. Place, we had lunch and I'd like to name the place. It's called Ethnic taste. Ethnic Taste, and you can't find it. It's a Siamese plate, yeah. yeah, lovely. You guys half an hour to find the place, but it's a home thing. They cook themselves, and on the terrace they've opened something. It's really nice. It's really sweet. Interesting. And how did you discover that place? Well, it's perplexity and a lot of other things. So it's defined. AI recommendations are on your list. Cool. Okay, now that we've done a general introduction, I want to understand the background of your names. There is Ram and there's Lakshman. Are your families religious? Are you religious? We're atheists. Our families are atheists. They had contemplated Ravan and Kumbhakarna, but went with Ram and Lakshman instead, I guess. No, there's a thing. Yeah, my grandfather wanted to name us Ram Lakshman, and but do you have 2 minutes? Yeah. Initial time. There is a story behind. There is a story behind it. But there's my grandfather. ये बोल देते हैं. हाँ, हमारे दादा जो है उन्होंने एक जो घर बनाया था उनके आगे उन्होंने एक छोटा सा घर नहीं दे वो बहुत ऐसा बना था, तो छोटा सा एक हनुमान का मंदिर बनाया था उन्होंने. वो मछलीपट्टनम जहाँ से मेरे दादा हैं वहाँ का सबसे बड़ा लैंडमार्क है. वहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था और उसमें एक औरत रहती थी 90 साल की. उनका नाम था वेंकटा सुब्बम्मा. ये बात है 1973 की.
वहीं पे anyway, थोड़ी साफ सफाई कर लेती थी, उनको खाना मिल जाता था, शी यूज्ड टू स्टे देयर। और ऐसा बोलते थे कि उन पे माता चढ़ती है, उन पे कोई पोजेशन होता है, वो बोलते हैं ना वशीकरा। तो ऐसा एक बार वो चिल्लाने लगी एकदम गाढ़े आवाज में कि वो ब्रिंग समबडी। एनीवे शी काइंड ऑफ लुक्ड एट आवर मदर एंड फादर, हमारे पापा को प्रोफेसाइज्ड बोला कि राम लक्ष्मण आ रहे हैं, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। ठीक है, तो जब पता चला देन मंथ्स लेटर हमारी मम्मी जब हम कंसीव हुए, वी वर बोर्न द नेक्स्ट ईयर एक्चुअली। तो व्हेन वी वर कंसीव्ड एंड दे सेड शायद ट्विंस हैं, तब उन्हें लगा अरे ये राम लक्ष्मण। तो मेरे दादा ने बोला कि इनका नाम राम लक्ष्मण रखेंगे, इनका सफिक्स या प्रीफिक्स कुछ और रख देना, आगे पीछे कुछ डाल देना। तो आप माय फादर नेम्ड अस रघु एंड राजीव, सो रघु राम राजीव। Oh, here's a great story. But did the temple become a landmark before you became who you are, और उससे पहले ही लैंडमार्क बना था? वो तो मंदिर है, वो वहाँ पे भगवान, वो एक बहुत छोटा सा गांव है मछलीपट्टनम, उसको बंदर भी अब बोलते उतना हैं। छोटा नहीं है बट मतलब छोटा तो है, बंदर भी बोलते हैं उसको, क्योंकि वहाँ बंदरगाह इज अ पोर्ट। फ्रेंच हैड फर्स्ट बिल्ट अ पोर्ट इन दैट प्लेस, इट्स अ कोस्टल टाउन। सो पोरबंदर इज आल्सो सो बंदरगाह पे बंदर बोलते हैं उसे। और इज आल्सो कॉल्ड बंदर, मछली अपन बंदर से हैं एक तरीके से। या राइट, मछलीपट्टनम मींस कोस्टल टाउन। Interesting. I mean, if Ram and Lakshman are there, वानर सेना को तो होना ही पड़ेगा ना। हाँ, I think there's a beautiful story. और वहाँ पे हनुमान टेम्पल बिकम लैंडमार्क, जैसे कहते हैं बिल्कुल। आजकल लोग पूरा वो सर्वे करके वो कहते हैं सर इस पे ना एक मंदिर पर टारगेट ऑडियंस यहाँ पे है, और मैं कितने दशक पहले कर गया। बढ़िया है, रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ रहा है इससे। बट okay, one interesting question. I like how you have this pairing going on. Growing up as twins, was it good, bad, fun? I'm assuming fantastic stories, but what was it like See, for you? for us, हमारे लिए नॉर्मल है अब। इट बिकेम अ वाइल बिफोर वी रियलाइज कि यार हम डिफरेंट है, इन द सेंस जैसे एक आदमी को कभी भी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं समझ में आएगा, उसको जानकारी रहेगी, but he'll never know what it feels like. Menstrual cycle. He'll know stuff, but he won't understand how different it is. Similarly, we don't know what is life without a twin. We don't know, right? मुझे ना बचपन से सिर्फ ये पता था कि देयर समथिंग स्पेशल अबाउट अस। हर कोई हमें देखता है अलग से और घूरता है। मेरी फर्स्ट मेमोरी ही है कि लोग हमें घूर रहे हैं, हमें अलग से लेके जा रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। मेरे को बाद में जब मैं बड़ा हुआ मुझे तब समझ में आया कि या वी आर स्पेशल या। पर सो ऑब्वियसली हमारे ऐसा नहीं है कि कुछ हमने बहुत अलग किया हो लाइफ में, जैसे जो सबकी लाइफ होती है। जस्ट क्वालिफाई दिस, मैं जब कहता ना स्पेशल है, मैं कोई डींगे नहीं मारता, मैं कह रहा हूँ कि ग्रोइंग अप एज अ ट्विन ना इज अ स्पेशल एक्सपीरियंस। स्पेशल मतलब अलग है, अलग। सबके भाई होंगे, किसी के बहन होंगे, सब होगा, बट जुड़वा नहीं होगा। और जुड़वा होना मतलब बहुत ही अलग है, बिकॉज तुम्हारे जैसा ही एक और है, तुम ही एक और जगह पर हो। तो तुम्हें कभी उससे कोई सीक्रेट नहीं होगा कभी, और कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं होगी, तुम समझते हो दिस। Half of it is telepathic of sorts of. इन अ वे like today we opened our suitcases, we had packed the same clothes. ये प्लान नहीं है हमारा, यही पैक किया था हमने। सो इट इज नॉट कि टेलीपैथी भी नहीं है। हाँ, मतलब हम सोचते हैं एक तरीके से। Mm. This particular segment should be dedicated to all brothers out there. I mean, I think specifically. But how we were talking about your movement from Andhra to, of course, then to Delhi. Then, of course, Delhi to you moved bases to Mumbai for your career. वो transition hard था, मुश्किल था. Just a few lines on that. इट वॉज नॉट ईजी। मुंबई एक ऐसा शहर है जब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप वहाँ नहीं टिक पाओगे। मतलब ना माता का बुलावा, वो वैसे सीन है। मैं तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट डाल देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे काफ़ी ना जो व्यूअर्स हैं वो यंग है, और कुछ है जो हमारी उम्र के या थोड़े बड़े हो चुके हैं। जो अभी यंग लोग हैं ना, वो कभी नहीं समझ पाएंगे व्हाट इज लाइफ विदाउट एम्पलीफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शंस। ओके, अभी राइट नाउ कोई भी बैठ के तुम अपना स्टेज अपने जेब में लेके चलते रहो, तो अपना माइक्रोफोन अपने जेब में लेके चलते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुम यू कैन क्रिएट, घर बैठे बैठे अपने करियर बना सकते हो। आप किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम खुद आ सकते हो। फॉर देम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज लाइफ विदाउट इट। ठीक है, सो
अगर दिल्ली से निकल के हमें बॉम्बे जाना वो भी बगैर नौकरी के ना, इट वाज लाइक अ वनवास. मैं 3 बार गया, कोशिश की मैंने 3 बार जाने की. 2 बार मैं लात खा के वापस आया. सिर्फ वो होता है ना जो एक सूटकेस से गिटार, वही लेके मैं जाता था. अपने मेरे दोस्त भी बेचारे स्ट्रगलर, वो भी किसी के घर में पीजी में रहते थे. पेइंग गेस्ट थे. चुपके रह लिए. पेइंग गेस्ट में मैं शेयर कर रहा हूँ, मतलब ऐसा मुफ्त की रोटियां तोड़ना. मूंग की रोटी तोड़ना, रोज जिल्लत का सब्जी खाना, क्योंकि वही एक काला गरीबी के दर पे भुखमरी का आटा गूंद के, लाचारी का नमक छिड़क के, आते थे. आंसू में डुबो के खा जाओ. इट वाज अमेजिंग. अभी मैं सोचता हूँ ना, मजा था यार. क्या होता है स्ट्रगल, क्या होता है व्हेन यू परस्यूइंग योर पैशन, व्हेन यू परस्यूइंग योर ड्रीम्स, स्ट्रगल नहीं होता वो. इट वाज एक उम्र होती है, एक उम्र होती है जिसमें तुम्हारे सपनों में और एम्बिशन में ना एक पागलपन होता है. तुम कुछ भी कर जाओगे तुम्हें वो फील नहीं होगा. फिर बाद में सोचता मैंने ये भी किया था, वो भी किया था यार. उस टाइम फ्रस्ट्रेशन होती थी. स्ट्रगल पता है क्या होता है? उस फ्रस्ट्रेशन को झेलना, वो एक स्ट्रगल है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा. मेरे में है जब काबिलियत. 6 साल में दिल्ली में काम करके आया, मेरे को सबने बोला मैं अच्छा काम करता हूँ, मुझे क्यों नहीं मौका मिल रहा है यहाँ पर. मैं प्रूव करूंगा अपने आप को, मुझे प्रूव करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा. वो फ्रस्ट्रेशन झेलना एक स्ट्रगल था. एक बार आया, लात मार के वापस गया. दूसरी बार आया, लात मार के वापस गई. एक और तीसरी बार में टिक गया. एक और हमारा एडवांटेज पता है क्या था, कि हम एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं है. स्ट्रगल इज एक्चुअली देयर इज अ होल लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन इन्वॉल्वड, होल लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, होल लॉट ऑफ सर्वाइविंग, स्लमिंग इट आउट, It's just a typical Tuesday for us. Yeah. With a privileged background, it's very difficult. It's very difficult. For हम जहाँ से आए, DTA स्कूल करके होता था दिल्ली में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल. तो हमारे सारे क्लासमेट्स ना वेरी लो स्ट्रेटा, कोई बस कंडक्टर, कोई इलेक्ट्रिशियन का बेटा, कोई शॉपकीपर, दे यूज्ड टू बी आवर क्लासमेट्स. सो हमारा जो पीयर ग्रुप था, उनके सारे किस्से स्ट्रगल के ही थे. स्ट्रगल मतलब ऑप्शन बनाना, सबको अपना ऑप्शन बनाना खुद. स्ट्रगल इन द सेंस, कभी खाना मिल गया, कभी नहीं मिला, कहीं रात को सोना. हम कितनी बार तो एक मंदिर में सोते थे हम दोनों, राइट. सो ये हमारे लिए आई वुड अभी लगता है कि हाँ फ्रस्ट्रेशन तो होती है, स्ट्रगल है. बट इतना आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं था हमारे लिए. Great. I think that's and this has only come, these experiences have only come because you chose to move out. Do you feel that? मतलब अगर वही रहते घर के छत्र छाया में रहते तो कहाँ ये स्ट्रगल बनते हैं. You would not have become. Either people are choosing your destiny or you're choosing it yourself, right? और स्ट्रगल की जिंदगी ना रिग्रेट की जिंदगी से बहुत बेहतर है. ये बहुत बढ़िया लाइन है, ये कहीं यूज करना चाहिए इसको. अभी एक इस पे क्वेश्चन है. You're sharing such beautiful stories with us. Your TV roles have been, however, a little cruel. Your TV persona बोलूँगा मैं. Your television persona, your show personas have been rough. Are you actually like that? So I'll tell you something. कभी इंटरव्यू दिया कभी लाइफ में किसी भी नौकरी के लिए? किसी नौकरी के लिए ये जो नौकरी के लिए लिया वही मिल गया नौकरी. हाँ, कभी डेट पे गए? हाँ गए थे. दोनों में आप सेम बिहेव किया आपने? नहीं, आई थिंक हाँ. जैसा देश वैसा बेस. करेक्ट है. वो भी तुम थे, ये भी तुम थे, है ना. अब ये नहीं चूज कर सकते सिद्धार्थ ये है या ये है, दोनों है. मैं आपको जब कहता हूँ क्या अब वो हो, अब उसमें ना स्क्रिप्ट नहीं है. और अगर हम वो कैरेक्टर कर रहे हैं, अगर वो एक कैरेक्टर है, तो हम कभी कैरेक्टर ड्रॉप नहीं कर सकते. तो अगर हम किसी भी सिचुएशन में उसको हम मेंटेन कर पा रहे हैं, तो क्या वो कैरेक्टर है या क्या वो हम ही. मगर ये सोचना गलत होगा कि हम बस वही है. हर एक के अंदर ना एक काफ़ी फैसेट्स होते हैं. इफ़ यू आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर तुम्हारी कहीं लड़ाई होगी, तो आपके अपने अंदर से एक ऐसा पर्सोना बाहर निकलेगा जो आप पहचान नहीं पाओगे. बट वो आप हो, बट क्या वही आप हो? नहीं. उस इंटरव्यू, उस डेट में तो आप वो नहीं थे. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ अस व्हिच वी एम्पलीफाइड. हमने उस चीज़ को एम्पलीफाई करके आगे रख दिया. अपने बाकी जो वो पर्सनालिटी के हिस्से हैं जो आपको शायद पसंद आए, उसको हमने डाउन प्ले करके छुपा दिया. उसकी जरूरत थी उसलिए. इसका ना एक इंसाइट बताता हूँ मैं आपको. आजकल काफ़ी मैंने देखा है, बुक्स भी ऐसे और बहुत ऐसे होते हैं जो हमने आई थिंक कहीं से ना सीखा ना कुछ, बट एक हमारे पास सुपर पावर थी. वी डिडंट केयर टू बी लाइक्ड. ओके. डू यू अंडरस्टैंड?
तुम्हें ये नहीं पता कि हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं वी स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी ट्राइंग टू बी लाइक्ड. I mean, it is also one of the reasons is social media, right? No, उसे छोड़ दो. Even before that, it's human. सोशल मीडिया इज एडिक्टिव बिकॉज ऑफ दिस. सोशल मीडिया से पहले लोग कपड़े पहनते हैं. घर से पहले जब कहीं जा रहे हो तो जो कपड़े पहन के आप निकलते हो ना, उसमें ये एक थॉट होता है कि विल आई बी लाइक्ड वेयरिंग दिस. ठीक है. सोशल मीडिया रिकग्नाइजेज इट एंड इट हैज डेवलप्ड एल्गोरिथम्स टू एक्सप्लॉइट इट. दैट उसने पैदा नहीं किया, उसने एक्सप्लॉइट किया. हम इतना एनर्जी और टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं कि यार लोग हमको हेट ना करें, हमको लाइक करें, हम कि हमारे दोस्त हमारे बारे में अच्छा बोले, हमारे पेरेंट्स प्राउड हो हमारे लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ कहें, हम एम्प्लॉयज़ बोलें यार ये बहुत अच्छा काम करता है. वी वांट टू बी लाइक्ड. अगर वो उससे आप आज़ाद हो जाओ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन लाइफ. आई एम नॉट सेइंग piss people off. I am saying when that is no longer your primary focus, you can express yourself more genuinely. One question that I have is perhaps you may choose to answer or not. Do you think in the current situation the MTVs and Channel Vs are still relevant? The kind of content they are producing? So Channel V is no longer there. And truth be told, we don't know what kind of content MTV is doing. Jitna mujhe pata hai. I think that has answered your question. No. Yeah. When you were there, the channel was, I think, experiencing its peak. Actually, when we were there, MTV was very different. Okay. It was very relevant when we were growing up. Music videos, countdown shows. We are Gen X, right? We were also called the MTV generation. Right. ठीक है. A तो generation was named. म्यूजिक वीडियोस, बाबा साइकिल के वीडियोस आते थे, इतने सारे और फनी चीजें, फुल्ली फालतू, बकरा, ऐसी चीजें होती थी. बट इट वाज लूजिंग इट्स रेलेवेंस. ओके. A new, more aggressive, more ambitious, more aspirational generation was coming along, and they found expression in us. So we weren't there because MTV was relevant. We made it relevant. Similarly, No, I won't say we made it relevant. I'd say the relevance happened because of a certain way of thinking that MTV had. उस time MTV की सोच इस तरह की थी. They were looking for relevance. They were not looking for relevance. They were looking for expression. Yeah. Okay. Relevance is a byproduct of expression meeting the zeitgeist. जो एक कल्चरल जो सब फील कर रहे हैं ना, उसका एक्सप्रेशन किसी जैसे अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बन जाता है, तो वो एक पूरे जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है. राइट. हाँ. वैसे ही कुछ चीज हमने जो किया, जो हमने बोला, वो एक जनरेशन में या 2 जनरेशन में उन्होंने कनेक्ट किया. सो हमने रेलेवेंट ना बनाया, ना हम उसे रेलेवेंट बोले. बट वो चेंज हुआ. देयर वाज अ इवोल्यूशन इन आवर थिंग. अभी मेरे ख्याल फिर से एक जरूरत है वापस आत्मचिंतन करना और लोग सुनना कि लोग क्या कह रहे हैं, अभी क्या, व्हाट आर देयर डीपेस्ट एस्पिरेशंस, एंड ट्राई एंड रिफ्लेक्ट इट एंड लीड इट. या. And do you think आज की वो जनरेशन जो है, क्या वो आपका वर्जन ऑफ रोडीज, would they survive that? यार वो तो देखना ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है. वो इसलिए क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहूँगा इस बारे में. वो जो अब वो कहना, अब ये गाली बन चुकी है. जैसे फेमिनिज्म एक गाली बन चुकी है, अल्फा एक गाली बन चुकी है. वो इसलिए क्योंकि इट हैज़ बीन ओवरटेकन बाय पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड इट. सो ये जो वोक, फेमिनिस्ट, माचो, अल्फा, ये सारे लाइक चीज़ है ना, इनका मैं इन्हें सही गलत नहीं बोलूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसके बारे में जो आजकल बात कर रहे हैं या उन्हें पर्सोनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हें समझते नहीं है. वोक इज़ नॉट अ बैड आइडियोलॉजी. वोक इज़ लुकिंग एट इट्स अ रिएक्शन टू इनजस्टिस. injustice, and woke to say जो traditionally is accepted a racial slur or discrimination, be aware and try not to do it. That is a woke thing. अब जो लोग इस पे चढ़ गए ना, वो हर चीज पे आपत्ति खड़ा कर रहे हैं, हर चीज पे ये गलत है, वो गलत है, उनका ये it's called उनका ये एक्सप्रेशन है कि offense porn. मुझे ऑफेंड नहीं होना है ना, तुझे, तुम ऑफेंड नहीं कर सकते. ऑफेंस पॉर्न है. वो ढूंढते हैं किसने कुछ बोला, ये देखो ये टॉक्सिक है, ये मेल शोविनिस्ट है, ये देखो फेमिनिस्ट है, ये देखे. तो बेसिकली वो तो सरवाइव कर ही नहीं पाते. यू एड ऑन योर शो व्हेन वी, एटलीस्ट आई एम सेइंग नाउ, मैं अभी नहीं देखता जो शो क्या पैसा, द पार्ट ऑफ द शो दैट यू वर अ पार्ट ऑफ, दैट यू क्रिएटेड, वो हम तब देखते थे. एंड नाउ इफ यू डू दिस यू वुड बी कॉल्ड आउट. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ये सोच के रखा कि आई थिंक पीपल वुड नॉट हैंडल इट वेल. Once you stop giving a fuck
a whole new world opens up. Yeah. You know, we were called out there. It doesn't matter to us. See, we have to be honest to ourselves. And a woke person, and when I say woke, I mean pseudo woke. People who look at stuff to get offended and boycott, hashtag, something, cancel culture. If you want to do it, do it. मैं आपको ये बता आप you be you, I didn't. ये ऑफेंड होने का जो बीड़ा है ना, वो सिर्फ वो लोग ने नहीं उठा रखा. आप किसी कंजर्वेटिव के पास भी चले जाओगे ना, वो तो सदियों से वो चाहे वो लोगों पे हंसे, मगर मैं उनके रिलीजन या उनके कम्युनिटी के बारे में एक चीज बोल दूंगा ना, वो उनका खानदान नहीं सह पाएगा, उनके परखच्चे उड़ जाएंगे. समझ रहे हो? वो जिस लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस लेते हैं ना, वो ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस, वो एक टोली आएगी आपका दुकान तोड़ के जाएगी वो, क्योंकि आपने उस भाषा में अपना नाम नहीं लिखा. समझ रहे हो? वो उस बातों में ऑफेंड लेता है. ऑफेंड होना हम इंडियंस का पास टाइम है. पास टाइम क्या, नेशनल पैशन है. मैंने एक मीम देखा था, बहुत ही इफेक्टिव है. मेन ऑल ओवर द वर्ल्ड डूइंग व्हाट दे डू. तो एक इटालियन है वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा के आगे पास्ता बना रहा है ओपन में, ठीक है, वो इज कुकिंग. फ्रेंच मैन वो आईफल टावर के आगे एक औरत को पकड़ के ऐसे किस कर रहा है. ही इज बीइंग रोमांटिक एंड ऑल दैट. ठीक है. ब्रिटिशर्स वो देख, अमेरिकन देख रहे हैं कि भाई कहाँ तेल है, मैं पेल लूं, मैं बॉम्ब मार दो. और एक ऐसे इंडियन खड़ा हुआ, इंडियन मैन टेकिंग ऑफेंस. वो हर चीज में ऑफेंस लेते, तो ठीक है यार. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि ये लोग झेल पाएंगे, और मुझे नहीं लगता उससे हमें कोई फर्क पड़ता है. तो आपने अभी एक सेंटेंस बोला जो मेरे प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस में नहीं था, बट जस्ट आस्किंग, दैट टाइम ट्रोलिंग वाज वेरी डिफरेंट. तब इंटरनेट इतना परवेसिव नहीं था अभी जितना है. तब आप कैसे हैंडल करते थे उसका जो रिपरकशन अब भी शायद आता हो? यार आई वांट टेल यू समथिंग, जो देव शैपल ने बहुत ही वाइज चीज बोली है. द इंटरनेट इज नॉट अ रियल प्लेस, ट्विटर इज नॉट अ रियल प्लेस. मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. जो लोग मेरे को जानते हो, मेरे को बोलते, मेरे को, मैं उनकी बात नहीं सुनता. यार तुम कौन हो जो तुम्हें तुम्हारी बात से जरा भी फर्क पड़े मेरे को? बहुत ही बड़े. It's not a you are not a real person. Your opinion is not real. The shit I give is real. And I don't give a shit. The shit I don't give is real. Sorry. नहीं, बट हैविंग सेड दैट, ये सवाल जो है ना आपका बहुत रेलेवेंट है, और वो है क्योंकि बहुत लोग ट्रोलिंग पे आ जाते हैं, बहुत कैंसिल कल्चर होता है, बहुत उनको बहुत ऑफेंड होता है. और क्योंकि हमारे लिए नहीं है सोशल मीडिया रियल प्लेस. एक पूरा एक नया जनरेशन है जहाँ पे रियल वर्ल्ड से ज्यादा वो रियल लगता है उनको, है ना. और वहाँ पे अगर गलत उनको ट्रोलिंग आ जाए या रिएक्शन आ जाए, वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दैट सिचुएशन. उन लोगों को मैं बोलूँगा थोड़ा स्विच ऑफ करना सीखो लाइफ में, चाहे वापस आ जाओ. राइट. पर्सपेक्टिव रखो कि रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में फ़र्क है. वो आपके लिए होगा रियल, बट ये दो अलग अलग दुनिया है. जहाँ पे आपको परेशानी मिलती है वहाँ से आपको पीछे हटना पड़ेगा. जहाँ आपको शांति मिलती है वहाँ आपको बार बार रिजुविनेट करने जाना पड़ेगा. टुडे यू आर हियर एट अ कैंपस, IIT गुवाहाटी के कैंपस पे आए हो आप. What do you see when you interact with the kids who are 16, 17, 20 something? What do you think they should learn from you? Yeah, I'm trying to learn from them actually. I like that answer. Because इनकी जो दुनिया है ना वो बहुत अलग है, और ये अब this is the world now. You know what I'm saying? Of course, there are things they can learn from our generation. How to handle stress. मुझे लगता है कि our generation की बात है, बट अपने जनरेशन की अगर मैं बात करूँ ना, we are the people who have dealt with change the most. ठीक है. Black and white to TV, color TV, right? दूरदर्शन to satellite, LP to cassette, to CD, to DVD, to digital, from everything. हम if we get comfortable with anything ना, new technology come, and that becomes redundant, obsolete. We have to learn new things. Internet आया यार, facts पे खेलते रहते थे अपन, right? So हम इतना change हमने वो किया है that I guess we have the ability to recognize change that is happening right now and try and learn from people who are native in that change. You understand? They have experienced the world very differently compared to us. Obviously, they can learn from us. We can also learn from them. I have just a few questions, but one of them is on one of the podcasts that you started. I think आपने एक podcast भी start किया था, where you were talking about Mancyclopedia. That was the name of the show, right? Do you think it is a lot of pressure being a man? Can we understand 2 lines on that, just to understand how you see pressure for men literally? he is living a life of pressure. सुब्रमण्यम, राइट. उसने कहा यार, उसने मजाक किया था. उसने बोला कि यार 90 आवर वीक होना चाहिए. क्या करोगे घर पे, शक्ल देखोगे अपनी बीवी की, आओ घर करो, काम करो, ठीक है.
ये उसने ना मजाक में बोला था, मतलब उसका आइडिया ऑफ मजाक, बट इसके अंदर ना एक बहुत डीप कल्चरल इंसाइट है। टॉक्सिसिटी ये है। आदमी का एक काम है काम करना, अगर वो नहीं कर रहा ना तो वो किसी काम का नहीं है। एक अपना क्रिस रॉक ने बोला था, ओनली विमेन, चिल्ड्रन एंड डॉग्स आर लव्ड अनकंडीशनली, मेन आर लव्ड विद द कंडीशन दैट दे प्रोवाइड। अगर आदमी बढ़िया है, खूबसूरत है, जवान है, नौजवान है, गाना गाता है और किताबें पढ़ता है लेकिन कमा नहीं रहा, उसके दोस्त उसे छोड़ देंगे, उसकी बीवी मिलेगी नहीं, छोड़ दो, घर वाले गर्लफ्रेंड छोड़ देंगे, घर वाले कहेंगे हमारा बेटा नालायक निकला। ठीक है, यही कोई लड़की करे तो ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों के प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, हद से ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मगर लड़कों के पास ना ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है वो आदमी भी उसी जनरेशन से एक्सेप्टेबल ऑप्शन नहीं है कि आदमी, औरतों के पास मैं ये नहीं कह रहा कि उनको काम नहीं करना चाहिए, मगर एक कल्चरली एक्सेप्टेबल ऑप्शन तो है। आदमियों को ये बोला था ना कि संडे के दिन तू घर के बैठा तो क्यों, कैसा नालायक निकाल। बचपन से वो आगे काम कर, घर वालों की सुनो, टीचरों की से डांट दियो, ठीक है, फिर बीवी की सुनो, डांट को, बच्चों की देखभाल करो, उनकी शादी करवाओ और तब जाके मर जाओ। और जब भी आदमी कहता ना, और जब भी आदमी कहता ना कि यार मेरे को प्रॉब्लम है, एक तो बोल नहीं सकता, हाँ, उसको बोलता लड़की यार लड़की वाली बातें करता रहता है यार, मर्द रो मत चल, मर्द बन ऐसे बोल। जब भी बोलता है यार मेरा प्रॉब्लम है, वहां से फैमिलीज भी आ जाएंगे, वहां से वो भी आ जाएंगे। यू आर प्रिविलेज, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? लड़कियों को देखो, हिस्टोरिकली ये हुआ है, स्लीवरी हुई है, ये हुआ, ब्राइड बर्निंग हुई है, हाँ ठीक है, बट मेरी लाइफ मुझे टफ लग रही है। हट आदमी साला काम कर जाके, संडे के दिन घर बैठ के बीवी ताड़ रहा। These are the things. So, I mean, I don't think men today have figured out how to be men anymore. तभी देयर आर सच टॉक्सिक एडवाइस ऑनलाइन ना, जो Red pill philosophy सुना होगा, manosphere. At least they validate कि and acknowledge कि feeling shitty, then this is why. But that's not true. The thing is, यार आदमी बनना बहुत टफ है। जब तुम्हारे when asking for help is seen as a laughable weakness, मजाक उड़ता है उसका, तो आदमी क्या करे? How can he ask for help when asking for help, saying I have a problem is a problem? That is being a man. एक और चीज बता दो, मेंटल हेल्थ की इतनी बातें होती, पीपल आर एनकरेज कि यार सीक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड गाइडेंस। एंड टेल यू समथिंग, काउंसलिंग फॉर द मोस्ट पार्ट, टॉक थेरेपी इज नॉट मेड फॉर मेन। टॉक थेरेपी जो होता है ना, और तो पे उनका ये, बिकॉज आप सोचिए 98% ऑफ थेरेपिस्ट्स आर विमेन, ठीक है, पेशेंट्स ज्यादा विमेन भी होती है, क्योंकि दे रियली फील कि यार मैं, व्हेन पीपल एक्सप्रेस I have expressed myself. I have a problem, I've talked about it, I feel better. Men don't, men feel worse. And this is not to minimize No, I'm saying of women at all. I'm saying mental health is ka therapy approach has to be different for men, and nobody's talking about it, nobody's recognizing it. Oh, फिर भी, yes, Dean, how are you feeling? दीप, तुम्हें पता है कि जो सुसाइड्स होते हैं हर साल ह्यूमन बीइंग्स, उसमें से क्या परसेंटेज आदमियों का, नहीं प्लीज, over 80% of all suicides are men. So what I'm saying is, That will tell you something about what it feels like to be a man and the pressure that they feel. and men's mental health. no understanding of how to tailor make mental health options for men. You understand what I'm saying? So that answers your question, how we feel, and that's the reason we came up with that encyclopedia. We really feel that men should be spoken to differently and acknowledged, and they themselves should be made aware that yes, it's okay for me to feel stressed. But right now I get the vibe that तुम girlfriend पी रही तो your girlfriend trouble आ रहा है ना तुम्हें? Absolutely नहीं, मैं Very understanding only when he flirts elsewhere ना, on social media, जब वो करता है, लाइक कर, जब अपने हाँ पोस्ट करता है, नहीं, जब ये बाकी लड़कियों को फॉलो करके यार DM या अपने खुद के बिकिनी पिक्स डालता है, वो लड़की पागल हो जाती है, इसकी गर्लफ्रेंड क्यों सा है वो, चले सोचे कहते मैं नहीं डाल रही, तू डाल रहा है, बट यार बाकी लड़कियों का क्या होगा, वो भी मेरे वो पहन के बिकिनीज। बस Sudhama, we'll bring you back to the main conversation, which is, if you were born in the actual age of social media, which is right now, and because you've come here for a creators camp, if you were born right now, would you have actually been content creators or internet personas, or what would you have been? आपको एक चीज बताया था, ये जो कंटेंट क्रिएटर जो है ना, ये एक नया वर्ड है, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर कुछ नहीं होता है, जो आदमी बच्चे को
कहानी सुनाता ना सोता है वो भी कंटेंट क्रिएटर ही है. He created a content for somebody who is appreciating that content. समझ गया? कंटेंट क्रिएटर ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. आर्टिस्ट होते हैं जो अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को और अपनी दुनिया को दिखाते हैं एंड कि कोई रिलेट करता है उस चीज़ से एंड ही हैज़ एन एक्सपीरियंस, या तो एक अच्छा एक्सपीरियंस बुरा एक्सपीरियंस, या सोचता है किसी चीज़ के बारे में. ठीक है. अभी कोई आईफोन ले ले तो वो कंटेंट क्रिएटर है, एंड्रॉयड फ़ोन ले ले तो वो इन्फ्लुएंसर है, ये कर लेना वो करिए, बकवास. मैं हम लोग तब भी what I hope, I don't know, but I hope that we would be expressing ourselves. नो सो एक चीज़ है कि अगर सभी हलवाई बन जाएंगे तो खाने वाला कौन बचेगा. ठीक है. सारे हलवाई हैं. ठीक है. तो तुम ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया एरा में पैदा हुआ तो मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए, ऐसा नहीं है. लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा अगर हम पैदा होते इस दौर में तो मैं ज़रूर कहूँगा लोगों को कि अपने आप अपने अपने ब्रांड को क्यूरेट करना ज़रूरी है. ठीक है. जो आपके वैल्यूज़ हैं, जो आपका रेपुटेशन है, जो आपका यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ वॉइस है, जो आपके एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनालिटी का जोड़ है. पर्सनालिटी का जोड़ है कि क्या किताबें पढ़ी है, कहाँ ट्रैवल किया है, किन लोगों से बात किया है और उससे तुम्हारे सोच में क्या आया है, या आप किस फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो, उसके बारे में क्या सीखा है, क्या सिखा सकते हो. ऑल दोज थिंग्स टुगेदर बिकम योर ब्रांड दैट नीड्स टू बी क्यूरेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इफेक्टिवली इन वॉट एवर सोशल मीडिया. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन भी है, सिर्फ फेसबुक नहीं है, तुम्हारा टिकटॉक जो भी. Have you finished your point, sir? तुमने कहा ना अगर हम पैदा होते हैं सोशल मीडिया टाइम पे, जो कि आज है, आज सोशल मीडिया नहीं है, वो कल था. आज अब AI हो चुका है. AI. We are living in the AI age. This is no longer the social media age. Little kids, be get with the times. ठीक है. नहीं बट चाहे दौर चेंज होता रहे, अपने आप को टटोलो, अपना क्या आप ब्रांड प्रोजेक्ट करना चाहते हो एंड डू. ये नहीं कि कंटेंट क्रिएट करोगे तो ब्रांड आएगा, पैसे मिलेंगे, यही मेरा करियर. ये तुम्हारा करियर कुछ भी हो सकता है. आप कंटेंट बना सकते हो. जस्ट बी फेथफुल टू व्हाट यू आर, व्हाट यू वांट टू बी. जो कहानी लिखते हैं ना उन्हें राइटर बोलते हैं. ठीक है. आज तो कोई लिखता नहीं है कलम से, लैपटॉप पे बैठता, वो टाइप राइटर है क्या? वो फिर भी राइटर ही है ना. Right. चाहे एक्सप्रेशन का तरीका कुछ भी हो, बंदा आर्टिस्ट होना चाहिए. कंटेंट क्रिएटर नहीं, एक्सप्रेस करे, आर्टिस्ट बने, बहुत. एंड आई होप दैट्स व्हाट वी वुड डू. But still sticking to my original question, जबरदस्ती भी आंसर निकालूं तो अगर कोई वो टिपिकल नौकरी वाली लाइफ होती तो क्या करते? Would a profession would have ever? वन सेकेंड, मैं आदमियों के जो हमारे डिस्कशन ऑन मेन उस पे आऊँगा. ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन करना पड़ता है तो करेंगे. ठीक है. करते हुए खुश हो इज अ वेरी रीसेंट क्वेश्चन. कर रहा है कि नहीं, यार नौकरी बेकार है मेरी. कमाना है तो है ना, करना तो पड़ेगा, बच्चे को स्कूल कराना है, रेंट देना है. क्या पागल हो गया है? तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसकी? और कोई बात नहीं, शाम को दारू पी लियो मगर वहां जा रोज सुबह. ठीक है. हम उस जनरेशन से हैं. ठीक है. चाहे कितना घटिया काम होता, हमें करना पड़ता. हम करते लेकिन मुझे लगता है हम कभी नहीं करते. हम कुछ ना कुछ अपना नया करते हैं. कुछ ना कुछ कर लेते. Since you've both actively spoken about mental health and therapy, I have one last question on that subject. Have you actively sought any therapy? Have you? तभी मैं कह रहा हूँ ना, टॉक थेरेपी इज नॉट फॉर मी. ठीक है. Men are not designed to articulate their feelings because they don't even acknowledge it many times, you know. Secondly, by articulating it, they don't feel better. they feel worse. They feel worse. A lot of times. We're not knocking down therapy for men. It's not for me. Saying that I would rather, हम बात करके खुश नहीं होते आप वो. I would rather go on a hike or a camping with my male friends and then rant. have a few drinks and rant about my stuff. But fish stands, fish, है ना, तो अच्छा लगेगा. कुछ फिजिकल एक्टिविटी लड़के हों अपने, और मतलब रात को अगर बात हो भी तो बकवास होता है. सुबह उठ के कहीं से छलांग लगानी है मैंने, कुछ बाइक चलाने, ऐसा कुछ. अब ये क्लिप में निकाल के, पर्टिकुलर क्लिप आपने जिसका नाम लिया था ना, उधर भेजना पड़ेगा कि मैं बातें नहीं कर सकता, मैं बात करने से मेरे को थेरेपी नहीं होता. I have to hang up. I have to go to the gym. Or I love this. Actually, there's a study that's been done that men for their mental health have to have boys' nights twice a week, involving alcohol. I'm not asking people to drink alcohol. Alcohol is bad for you. I'm telling you. But that boy camaraderie, that circle, that community is required. But the society looks down on that. Now that I've learned from you, who's
here to appease the society. No, I'm gonna appease myself. I'm saying expect it and disregard it. Yes, super. All right. And as I wrap this interview and questions today, what do you think is the legacy of Rajiv and Raghu? क्या है आपका legacy? क्या छोड़ जाओगे? थोड़ा hard question है, थोड़ा dark question हो सकता है. To be honest with you, that we can't choose our legacy. एक ये मैं बोलूँगा कि एक कैरम बोर्ड देखा आपने, ठीक है, बहुत सारी गोटियाँ हैं और 4 छेद है और एक स्ट्राइकर है. कई लोग होते हैं वो ऐसे निशाना लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, पूरा वो पड़ाक मारते हैं और वो अंदर चल जाता है. वो उनकी लेगेसी है. उनमें दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे डू इट. हम पता ऐसे फड़ाक करके घुआ तर 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 शेक थिंग्स अप, कुछ ना कुछ होगा कहीं ना कहीं के जाके फिर देखते हैं अच्छा क्या हो रहा है भाई, चलो ये करते. सो बेसिकली वी if there is a legacy, which I don't think we have earned that right to call our work our legacy. However, if somebody has to look at us and see how we define ourselves, it is that we have tried so hard so many times that some success has happened. Again, before my sign off cue, मैं excited हो रहा हूँ. So I'm just adding a couple of more questions there. You've both worked a little bit in Bollywood. Do we expect to see you in some new exciting projects? Yeah, Rajiv is right now really busy with a couple of projects that he started. It has to do with startups as well as social media. मैं क्या कर रहा हूँ? I'm focusing more on acting and writing. But most of that is happening down south, Tamil and Telugu films. I am also acting in some web series. Jamna Par करके एक आई थी. It's worked very successful for Mini TV. It is season 2 has just been announced. I think today or yesterday. Goats करके एक आ रही है Jio Cinema में. I'm in that. So yeah, things will keep happening. So more of you on screen, more of him somewhere in the back end. Once again, on screen ना अभी क्या है, जैसे मैंने बोला कि मुझे भी on screen कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, but not as an actor or something. Whatever I'm doing, I'll need to curate some kind of a content, है ना, online and stuff. वो तो करना पड़ेगा. आपको साउथ की पिक्चर में टिपिकल टाइपकास्ट विलन ही बनने बोला है? फिलहाल वही है, and I'm happy with that because it's great fun. But eventually I'll have to evolve out of it. So does that mean that everything that you've done in the past आपको आज के टाइम पे relevant रहना, do you find it very important? यार ये ना क्वेश्चन मेरे पास कई बार आ चुका है. You're trying to be relevant करके कुछ लोग ट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं, मैं ट्रोल के लिए नहीं बोला. मैं people use that. ये लेगेसी, रेलेवेंस, ये जो वर्ड्स है ना, ये किसी और पे छोड़ देता है. कोई स्कॉलर्स होंगे, पंडित सोसाइटी के, जो बोलेंगे कि ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट नहीं है, और ये लेगेसी है और ये इस बंदे की कोई लेगेसी नहीं है. ठीक है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट केयर. मैं अपना काम कर रहा हूँ. रेलेवेंस तुम देख लो यार. तुम अगर मेरे को रेलेवेंस नहीं समझते तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर तुम मुझे रेलेवेंस भी समझ मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा? You know what I'm saying? I'm doing my thing. Do your thing. Yeah, once again, the underlying insight here is Don't look for honestly express yourself, okay? And that is it. Okay, awesome. You can ask us. पूछो. आप पूछो. हाँ. I just wanted to know your experience working on the Layden show. How was the entire comic scene in India, please? Yes, man, I never consider myself comedian, but somehow I am in a way. I've done AIV roast. I've done latent. ठीक है, काफ़ी funny ads में भी आ रखा हूँ. So the latent experience was quite cathartic for me. मतलब अब ये big word है, मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत साल बाद, बहुत टाइम बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं खुला. जब वो माहौल ऐसा था अनरिस्ट्रेन्ड, जहाँ कोई रोक टोक नहीं है और आप खुल के मस्ती कर सकते हो विदाउट केयरिंग अबाउट कौन मेरे को सीरियस, बिकॉज यहाँ कोई सीरियसली आपको नहीं लेता. AIB रोस्ट एक ऐसी चीज़ थी जहाँ आप वैसी जगह खड़े हो, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हो. ठीक है, कोई किसी को सीरियसली नहीं ले रहा. जब ऐसा जगह मिल जाए जहाँ मुझे पता आप मुझे सीरियसली नहीं ले रहे, मैं आपको सीरियसली नहीं ले रहा, वो है फ्रीडम. और वो फ्रीडम उस मौके में, जैसे बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा बेस. जैसे मेरा एक बच्चा है 5 साल का, उसके स्कूल के उसमें गया एडमिशन कराने. वो मेरे को देख के कहते ये आ गया टाइप्स. तो मैं बैठा हूँ, जाते आते टीचर ने बोला आई लव यू लेटेड टू फिनो. तब बोलेगा क्यों देखा है यार. मैं पॉइंट इज मैं वहाँ पर वैसा हूँ, बहुत ही सीधा, बट यहाँ पर लेटन के उसमें ऐसा था. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड काफ़ी लोग ऑफेंड हुए होंगे, आई होप.
But comedians are also having a hard time, no? नहीं मैं बता रहा हूँ वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो तो हमेशा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो तो इसी पता है, अब तुम किसी दलदल में घुसोगे, जंगल में घुसोगे तो वो मच्छर मकोड़े आते रहेंगे, परेशान करेंगे। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। समथिंग फंडामेंटल हैज चेंज्ड विद लेटेंट। इससे पहले ना क्रिएटर्स नेवर ओन देयर वर्क। हमने रोडीज बनाया है, वी डोंट ओन इट। एवरी टाइम हमने कितने शोज हमने क्रिएट किए हैं, वी साइन ऑफ ऑल राइट्स इन परपेचुइटी टू अ चैनल और अ ब्रॉडकास्टर, Right. राइट? वी डोंट ओन। कितना रो पिट के जावेद अख्तर साहब ने लिरिसिस्ट को उनका राइट्स दिलाने की कोशिश की है, म्यूजिक डायरेक्टर्स के, आर्टिस्ट्स वो करते हैं। बट जो फॉर्मेट क्रिएटर्स हैं या कोई प्रॉपर्टी जो आईपी बनाते हैं, वो कभी खुद ओन नहीं करते थे, और बना के उससे- किसी और के नाम कर दिया। और उससे गरीबी ही मिलती है, और एक्सप्लॉयटेशन के लिए यू बिकम प्राइम फॉर एक्सप्लॉयटेशन। समबडी एल्स ओन्स योर वर्क, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समय रैना हैज चेंज्ड दैट विद लेटेंट। Has shown that change is possible. He hasn't changed it. नो, ही हैज started Broken down a wall. Yeah. मतलब एक बड़ा हिट मारा उस उस दीवार पे। Right. हम भी मार रहे थे छोटे छोटे, ठक ठक ठक, उसने दबाड़ मारा। अब जो नेटवर्क्स है ना, अब उनकी फट रही है। पटनी चाहिए। मैंने बात किया कितने नेटवर्क्स में, वो कहते हैं शिट यार, के अब कैसे करेगा वो You खुद know, कहता है मेरे पे अंधा पैसा फेंक रहे हो कि हमारे पास आ जाओ, उसने खुद वो कह रहा नहीं। ठीक है। सो आई थिंक दैट इज काबिल तारीफ, एंड आई वांट टू सी वेयर दिस गोज, बिकॉज आई वांट आर्टिस्ट्स एंड I'm rooting क्रिएटर्स for him, yeah. I'm rooting टू for him. रियली ओन देयर वर्क, ताकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो अपने औकात पे रहे यार, कि यार सर, और आर्टिस्ट आप आर्टिस्ट हो। वही मैं कह रहा हूँ ना, कि ये नहीं कि हाँ भाई आते रहते हैं हमारे आसपास। ट्रीट आर्टिस्ट एज आर्टिस्ट, यू नो, एंड ओनरशिप इज द की। Thank you so much. Yeah. Thank you so much. So, in the interest of a lot of freedom of expression and expressing yourself honestly, this conversation with both the brothers Raghu and Rajiv has been phenomenal for me. I hope all of you liked the conversation as well. If you have not done so already, please be sure to subscribe to the YouTube channel. I will also request the both of you to ask everyone to subscribe to G Plus's YouTube channel. और अगर आप लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, कोलैब एक्सेप्ट करेंगे, वी विल कंटिन्यू टू ग्रो। बहुत दूर से आए हैं गुवाहाटी सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि G+ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, समझे? ये बात मैं घर पे भी बोल सकता था, मगर आप मेरे को सीरियसली नहीं लेते। मैं यहाँ पर आगे बोला, टेक मी सीरियसली।